Hello, I'm Ronika Wahi. I have always been a lover of words, a lover of books, and that's why I've also been interacting with people who love books and who love words, and therefore I have always been fascinated with the process of writing, with the creation of books, and I'm sure there are millions of people who are similarly fascinated. So just to gain some perspectives from people who've been through that process, people who have been through writing, who've been through publishing, to gain some insights, some lessons from such people, I think it's a very, very good idea. So here today I have with me Mr. Manish Sharma. I'm sure a lot of you recognize him because he's been an anchor on television, and currently he is the senior producer at ABP News, and he's been writing. He's been writing since he was young. So he's written poetry. He's written short stories, and one very important work that he's written, and one very interesting work which has made him a very popular writer with people, is this one, Anguti Ka Bhoot. It's a novel written in Hindi, and it was first published in March 2019 on the self-publishing app Pratilipy, which is becoming very popular amongst the Indian masses these days. It's given voice to more than 3 lakh writers across 12 different Indian languages, and it has a very amazing monthly readership of as many as 25 million people or even more. So, and on that, Mr. Manish Sharma's book has become one of the most popular works. So, congratulations on that. And Thank another achievement is that this book has been published by none other than Manjul Publishing, which is a very established publishing house, and it's most popular for Hindi publication of Harry Potter books. And this book is a joint imprint of Pratilipy and Manjul Publishing. It's a joint venture called Ekatra. So this was published in April of this year. And thank you so much, Manish ji, for taking out the time to speak to me today. Welcome. Thanks, And Ronika. Thanks, and hi to all of viewers. Uh, it's really feeling great. I'm feeling great to join with all of you. Uh, it's nice collaboration with you to talk about books and my poems and my stories. Right. Okay, so the first thing that I'm really interested in knowing is that you since you were in college, you've been writing. आप कविताएं लिखते थे, आप कहानियां लिखते थे पहले भी, लेकिन ये आपकी पहली नॉवल थी जो आपने प्रतिलिपि में लिखी. तो क्या मोटिवेशन थी आपकी जो आपने ये दूसरा जॉनर ट्राई किया? आपको मतलब ऐसी क्या खास वजह कोई रही हो जो आपको लगा कि अब कोई डिफरेंट जॉनर ट्राई किया जाए? राइट, रोनिका, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा जैसे आपने कहा कॉलेज में पोयम से, तो कॉलेज के टाइम से ही शुरू करते हैं और कॉलेज के टाइम की झलक इस बुक के अंदर भी है. जी जी. वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स वाज दुख के बादल, दुख के बादल आकाश क्यों बन जाते हैं, सुख के सागर जो बहुत बड़े होते हैं, सागर विशाल, सुख के सागर तालाब क्यों बन जाते हैं. समझ में ये आए तो मुझे भी समझाना है दोस्त, समझ में ये आए तो मुझे भी समझाना है दोस्त, इंतजार के लंबे पल मिलन में छोटे क्यों बन जाते हैं, इंतजार के लंबे पल मिलन में छोटे क्यों बन जाते हैं. जब मैं कॉलेज में था, जब ये पोएम स्टार्ट किया लिखना, तो दैट वाज समथिंग कि जब भी मैं बोलने खड़ा होता, चाहे डिबेट हो चाहे लेक्चर हो, उसके बाद में यही बात आती थी कि एक बार ये वाला शेर जरूर सुना दो. तो दैट वाज सो पॉपुलर एट दैट टाइम. इसी तरह और भी मेरी पोएम्स वगैरह थी जो मतलब कुछ इस किताब का हिस्सा भी बनी है. और जाहिर तौर पे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, डिफरेंट चीजें थी कॉलेज लाइफ की और डिफरेंट चीजें हैं आज के दौर की. मेरा मानना है इट्स नॉट द राइटर हु चूज इज कंटेंट, राइट. जो फॉर्म होता है वो राइटर चूज नहीं करता है, वो जो कंटेंट है वो खुद चूज करती है कि उसको फॉर्म क्या मिलना चाहिए. If there is some emotional content, that's simply
maybe it will become poem. If there is some drama, then it will become some story. लेकिन लाइफ में इतने एक्सपीरियंस जब आप गेन करते हैं, इतनी मैच्योरिटी आप गेन करते हैं और आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, वो एक पोएम में नहीं आ सकता, वो एक स्टोरी में नहीं आ सकता। दैट नीड्स ए बिगर प्लेटफॉर्म, बिगर फॉर्म। That's why I starting writing novels, because there is so much to tell, so much of drama of life, so much suspense, so much content, so much characters I have seen। इतना सब देखने के बाद में वो पोएम में नहीं समा सकता, तो दैट्स व्हाई पोएम से हट के मैं नॉवल के अंदर आया। और डेफिनेटली एक एक नया जोनर, सिर्फ नॉवल ही नहीं लिखा, एक नया जोनर ट्राई करा है, दैट्स रोमांटिक हॉरर। मतलब हॉरर और रोमांस नॉर्मली इट्स फॉल अपार्ट। तो जहां हम हॉरर की बात कर रहे हैं तो हर कोई डर रहा होता है, गाय भूत है, डर जाएंगे, डर जाएंगे। तो इट्स एक ऐसा भूत मैंने क्रिएट किया है जिसे लोग प्यार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि काश हम उस भूत से मिल पाते, एक बार मिल पाते। क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी मिले हैं उस भूत से? लोगों की क्यूरियोसिटी ये है कि क्या आपने जो भूत लिखा है, क्या आप उसे कभी मिले हैं? अगर आप मिले हैं तो प्लीज मेरा एक बार इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। दैट्स सो मच ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ दैट कैरेक्टर। मतलब दैट्स व्हाई कि मुझे भी लगता है कि चीजें वक्त के साथ बदली हैं, तो इसलिए नॉवल के अंदर मैं आया, बजाय कहानी में या बजाय पोएम्स में। ठीक। Uh, thank you for sharing this. And okay, one thing I'm really interested in knowing is, because I think this is something that a lot of people have confusion about. आपने जब डिसाइड किया कि आप ये नॉवल लिख के फिर इसे आप शेयर करना चाहते थे लोगों के साथ, तो आपने प्रतिलिपि क्यों चुना? मतलब एक सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, तो आपको क्या आप हेसिटेंट थे ट्रेडिशनल पब्लिशिंग ट्राई करने के लिए, या आपको कोई एडवांटेजेस दिख रहे थे प्रतिलिपि में व्हिच यू डिडंट फाइंड एल्सवेयर? राइट। एक एक सेइंग है बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में, अनिच्य अनिच्य अनिच्य। हिंदी में उसे कहते हैं अनित्य अनित्य अनित्य। इम्परमानेंस इम्परमानेंस इम्परमानेंस। कुछ भी परमानेंट नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है। हर चीज बदल रही है, हर सेकंड बदल रही है। आप उसे समझें तो अच्छा, नहीं समझे तो अच्छा है, क्योंकि बदलाव तो होना तय है। दैट्स अ पूरा जो जिंदगी का सूत्र है, जो गीता में है, चाहे बौद्ध धर्म में, सारी एक ही चीजें हर बार बदलती रहती है। और इस बदलाव को अगर आप नहीं समझेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे या आप पीछे रह जाएंगे। मैं टीवी न्यूज में काम करता हूँ, जैसा आपने बताया कि सीनियर प्रोड्यूसर हूँ एबीपी न्यूज के साथ में। पिछले 14-15 साल से तो एबीपी न्यूज में ही हूँ, तकरीबन 20 साल से मैं न्यूज के अंदर काम कर रहा हूँ, जिसमें एंकरिंग है, वॉइस ओवर्स हैं, स्क्रिप्टिंग राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है। जो फॉर्म हो सकता है टीवी के अंदर मैंने सब किया है। तो वट एज ए टीवी पर्सन के तौर पर जो मुझे दिख रहा है, न्यूज इज डाइंग, टीवी न्यूज इज डाइंग एक्चुअली। टीवी न्यूज मर रही है, लेकिन न्यूज नहीं मर रही है। वो ट्विटर पे आप देख रहे हैं, आप फेसबुक पे देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों से टीवी पे आज भी न्यूज देख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम न्यूज का कंजम्पशन जो है वो चेंज हो गया। अब आप ट्विटर पे देखते हैं 140 वर्ड्स में आपने न्यूज देख ली, दोनों पक्षों के देख लिया, इसने ये कहा, इसने ये कहा, आपको समझ में आ गई कहानी पूरी। तो दैट्स द पार्ट ऑफ हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। सेम इज हैपनिंग विद बुक्स इन लिटरेचर। एक वक्त था जब लिटरेचर यानी बुक्स, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बुक्स की प्रमोशन के लिए तरह तरह की चीजें होती। राइट नाउ जब मैंने पहली बुक लिखी, मेरी ये सेकंड बुक है अंगूठी का बुक, और ये मेरी पहली बुक है गंदगी का महारथी। लेकिन दोनों के रूट एकदम उल्टे हैं। गंदगी का महारथी मैंने सीधा जो नॉर्मल पब्लिकेशन है, मैंने उसके जरिए ट्राई करा। लेकिन जब सेकंड बुक लिखने की बारी आई तो मेरे जो एक्सपीरियंस थे, उन एक्सपीरियंसेस को मैंने इकट्ठा किया और मैंने ट्राई करा कि क्यों ना इस जो नई चीजें हो रही हैं इसको मैं चेक करूं, इसको मैं ट्राई करूं कि होता क्या है इससे। तो प्रतिलिपि जब मैंने स्टार्ट किया तो दैट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल। पहले मैंने शॉर्ट स्टोरीज उस पे लिखी, तो लोगों को पसंद आई। लेकिन जब मैंने ये कहानी लिखनी शुरू की, अंगूठी का भूत, दैट वाज सो सुपर हिट। मैं हैरान रह गया। जिस किताब को लिखने के बाद आप पाठक ढूंढते हैं कि कोई पढ़ ले, कोई पढ़ ले, कोई पढ़ ले, और पर डे में आपको पता लग रहा है 5,000 लोग पढ़ रहे हैं किताबें। एक मैंने एपिसोड लिखा तो पता लगा 10,000 लोग वेट कर रहे हैं। तो दैट्स द पावर ऑफ प्रतिलिपि, दैट्स द पावर ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म्स। जो नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वहां आपको रीडर्स मिल रहे हैं। तो ये बड़ी जो चीज हुई है, मुझे जो चीज दिखी है,
जैसा आपने जो क्वेश्चन किया उसके बारे में मैं एक चीज़ और बता ये 2 बुक्स मैंने जो आपको दिखाई, ये 2 बुक्स के रूट अलग-अलग, एकदम अलग-अलग हैं। तो पहले मैं इस बुक के रूट की बात करता हूँ। गंदगी का महारथी जब मैंने लिखी, तो मैंने वही किया जो सब करते हैं। मैंने किताब लिखी, मैं गंदगी का महारथी इज़ अबाउट ऑल स्वच्छता मिशन और ये किताब जब मैंने लिखी थी, तब कोरोना का खौफ नहीं था और इस किताब में सारी जो कोरोना की सावधानियाँ हैं, वो सब हैं इसमें। क्योंकि मालूम था कि एक वायरस आएगा या कोई बैक्टीरिया आएगा, कुछ भी आएगा, उसके लिए आप एक ही चीज़ से बच सकते हो दैट्स स्वच्छता, स्वच्छता मिशन। तो जब मैंने ये किताब लिखी तो मेरा मोटिव बड़ा अच्छा था, मुझे लगता था एक मैसेज है, इस किताब के अंदर रिसर्च है, इस किताब के अंदर सैटायर है, इस किताब के अंदर कैरेक्टर्स हैं गंदगी फैलाने वाले। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने लिखी, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो मैं पब्लिशर्स के पास गया, दैट्स द फर्स्ट रूट। मैं पब्लिशर्स के पास गया। मैंने कहा कि सर मैंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। हाँ, हाँ, आप हमें किताब दिखाइए। किताब ली उन्होंने 6 महीने बैठे रहे, सोचते रहे क्या करेंगे, पैनल बना देते हैं। दैट्स द फर्स्ट पार्ट कि आप पब्लिशर के पास जाते हैं तो 2 तरह से किताब चूज़ करते हैं। एक आप पूरी बुक लिख के जाते हैं, वो अपने पैनल को बैठाते हैं, वो चेक करते हैं इट्स राइट और नॉट ये हम प्रॉफिट देगी कि नहीं देगी, उनके अपने प्रॉफिट के तरीके होते हैं। तो ये फर्स्ट रूट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसके अंदर सेकंड पार्ट आता है कि आपने बुक नहीं लिखी है, अभी बुक का अपना आइडिया तैयार किया और उसको लेके पब्लिशर के पास गए तो कहते हैं कि एक चैप्टर आप हमें लिख के दिखाइए। आपने एक चैप्टर लिख के दिखाया, पसंद आ गया, तो ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप किताब लिखिए और अगर आप बड़े नाम हैं, तो आपको पैसे भी मिल जाते हैं। अगर आप बड़े नाम नहीं हैं, तो देयर इज़ अ बिग नो क्योंकि पब्लिशर जो बैठा है, वो बैठा है अपने प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट? जी, तो जब आप पब्लिशर के पास गए, तो उसने पहला आपका नाम देखा, आपने कोई लिखा ही नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है, अब ये किताब खरीदेगा कौन? तो जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए फर्स्ट बुक इट्स टू टफ आप पब्लिश एक किताब इमेजिन करने से लेके छपने के बीच में 3 से 4 साल तक का वक़्त लग जाता है कई बार। 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो उस बीच में हो सकता है अगर आप किताब लिख रहे हो, आप किताब लिखने का आपका एनर्जी खत्म हो जाए, आप लिखें ही ना। तो दैट्स द फर्स्ट तो लेकिन जब आपने पूछा कि प्रतिलिपि क्यों चुना? तो उसके अंदर जो 4 चीज़ें महसूस हुई, 4 चीज़ें जो मुझे महसूस हुई वो मैं आपको बताता हूँ। दैट्स फर्स्ट इज़ हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन, राइट? होता क्या है कि आप किताब लिखने बैठे, आपने 1 पेज लिखा, मेरी फर्स्ट बुक 200 पेज की थी। तो अब 200 पेज 1 दिन में तो लिखे नहीं गए होंगे। तो इट टूक टाइम। आपने एक चैप्टर लिखा, पता लगा दूसरा चैप्टर आप सोच रहे हैं, तो 1 महीने बाद दूसरा चैप्टर लिखा गया। तो जब क्रिएटिव फेज़ के अंदर आप एंटर करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लिखते हैं। जब क्रिएटिव फेज़ में एंटर नहीं करते हैं, तो आप कम लिखते हैं। तो करते-करते मुझे लगता है मुझे लिखने में 1 साल लग गया होगा। लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि अच्छा लिखा कि बुरा लिखा। लिखा मैंने दैट्स फाइन, दैट्स फॉर मी। लेकिन उस उसका बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं निकल रहा था। लेकिन जब मैंने प्रतिलिपि पे लिखा, तो मैंने जब फर्स्ट चैप्टर डाला किताब का, दैट वाज़ तुरंत जो रिएक्शंस थे ऑडियंस के, रीडर्स के, तुरंत आए। व्हाट अ स्टोरी व्हाट अ स्टोरी! नेक्स्ट पार्ट कब ला रहे हैं? वी आर वेटिंग। ओह! मुझे लगा मैंने कुछ अच्छा लिख दिया। तो दैट्स द प्रोसेस स्टार्टेड विथ हैप्पीनेस। दैट्स प्रोसेस स्टार्टेड विथ सैटिस्फैक्शन, राइटिंग का सैटिस्फैक्शन। तो ये वो नॉर्मल प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं मिल सकता, नॉर्मल पब्लिशिंग में नहीं मिल सकता, जी, राइट? दूसरा एक होता है जो किसी भी राइटर के साथ में होता है, आप भी राइटिंग से जुड़ी हैं तो आपको भी लगता हो, मैंने लिखा है, क्या अच्छा लिखा है? क्या जी, ये जी, राइट? क्या ये सही है? मतलब इट्स वर्थी और नॉट? ये राइट, एक फीलिंग हमेशा रहती है राइटर के अंदर। तो जब आप लिखने बैठे, लोगों ने कहा कि इससे मेरी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा। अरे वाह! इतना शानदार आपने लिखा है, मुझे तो दोबारा पढ़ने का मन हो रहा है। वो आपका सेल्फ डाउट हट जाता है तुरंत। तुरंत आपके पास रिएक्शन आता है कि नहीं, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जब मेरी पूरी हुई तो एक एक बॉय का फ़ोन आया कहीं बिहार से, कहीं दूर-दराज से। तो ही वाज़ सेइंग कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा है ये कहानी पढ़ने के लिए। मैंने कहा हैं? गर्लफ्रेंड ने क्यों कहा है? कहते नहीं, उसको उसने कहा है कि कहानी तुम्हें पढ़नी चाहिए, अगर नहीं पढ़ोगे तो तुमसे बात नहीं करूँगी। तो मुझे कहानी पढ़नी पड़ी और कहानी पढ़ के मुझे लगा कि आपने बहुत अच्छा लिखा है। सर थैंक यू ये इनसाइट देने के लिए। एकदम क्लियर हो गई कि अब सेल्फ डाउट तो नहीं रहा है कि चीज़ तो मैंने अच्छी लिखी। उसके बाद एक आता है कम्युनिकेशन। जब आप किताब लिख रहे हो आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, आपके रीडर्स के बीच में और आपके बीच में। लेकिन जब आप यहाँ लिख रहे हैं, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड देयर इज़ कम्युनिकेशन चैनल स्टार्ट। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा था। तो पूरे देश से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो मेरी अगर मैं कहीं
कुछ गलत लिख रहा हूँ तो मेरे पास तुरंत कमेंट भी आ रहा है कि नहीं-नहीं ये अच्छा नहीं था। तुरंत कमेंट आ रहा है नहीं-नहीं ये बहुत अच्छा था। तो वो जो कम्युनिकेशन लाइन खुल गया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया ऑडियंस के साथ में, दिस इज़ द पावर ऑफ न्यू प्लेटफ़ॉर्म। तो दैट्स दैट्स इसने मुझे एक बड़ा फ़र्क डाला कि मैं पहले लिखने में ये होता था कि एक लिखा उसके 10 दिन बाद लिखा, 15 दिन बाद लिखा। इसके बाद जब मैंने बुक शुरू करी तो मैंने रोज़ लिखा। 1 महीने में मैंने बुक कंप्लीट करी और मैंने जितनी बुक यहाँ अभी तक लिखी हैं इस प्लेटफ़ॉर्म्स पे, नॉर्मली मैंने 1 महीने में 35 दिन में खत्म की है क्योंकि मैं रोज़ लिख रहा हूँ। तो दैट्स द पावर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन जो डाउट हटने की पावर है, कम्युनिकेशन की पावर है और एक सबसे बड़ी पावर जो मुझे लगती है आपके पास चॉइस आती है। मतलब आप कहानी लिखना चाहते हैं तो कहानी लिखिए, कहानी के अलग पाठक हैं। अगर आप पोएम लिखना चाहते हैं, तो पोएम के पाठक अलग हैं। लेकिन आप कोई लोकप्रिय ज़ोनर आप चूज़ करना चाहते हैं, जैसे हॉरर हो गया या लव हो गया, उसके पाठक अलग। तो हर तरह के पाठक यहाँ मौजूद हैं। आपके ऊपर है, आप जो लिखें, वो सब लपकने को तैयार बैठे हैं, सब एन्जॉय करने को तैयार बैठे हैं, बशर्ते कि चीज़ अच्छी होनी चाहिए। दैट्स द डिफरेंस और यही मुझे लगता है कि प्लेटफ़ॉर्म इसीलिए ग्रो कर रहा है, इसी में मुझे फ्यूचर दिख रहा है। बुक्स भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो दैट्स अ परमानेंट थिंग। लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी और ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। आई थिंक राइटर्स के साथ ना ऐसे होता है कि जैसे जब लिख दिया ठीक है, लेकिन जब एडिट करने की बारी आती है वो इतना घबराते हैं कि क्या काटूं क्या नहीं काटूं, वो कल पे टालने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक जब आपकी कुछ कमिटमेंट रहती है रीडर्स के साथ तो ये इस चीज में भी हेल्प करेगा कि फिर आपको लगे कि नहीं नहीं आज तो वो मेरी नेक्स्ट चैप्टर की वेट कर रहे होंगे या नेक्स्ट पोर्शन की वेट कर रहे होंगे। तो उससे भी बंदा मुझे लगता है ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है कि फटाफट अपना काम करें और उसे एकदम फाइन ट्यून करें और वो पॉजिटिव फीडबैक आता रहे। एग्ज़ैक्टली और जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरी एक बुक थी भूत झोलकी, असम की बहुत खतरनाक मिर्ची है, सबसे तीखी मिर्ची दुनिया की। उसके नाम पे मैंने एक बुक लिखी थी। मतलब दैट उस बुक भूत झलकिया पे नहीं है, लेकिन कंटेंट नाम उसका भूत झोलकिया है। तो उसके अंदर कुछ एक पार्ट्स को लेके ऑडियंस को था कि ये खींच रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब जब फाइनली मैं बुक की फॉर्म में लाऊँगा, तो आई विल जस्ट चॉप द पार्ट्स, उन पार्ट्स को मैं हटा दूँगा। तो इट्स सो ईज़ी फॉर मी ये समझने के लिए कि ऑडियंस ने क्या रिएक्ट किया है, क्या उन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद। तो दैट्स फॉर मी इट्स अ बिग डिफरेंस, राइट, राइट? सो दैट फीडबैक हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। और सोशल मीडिया पे भी मैंने बहुत बार देखा है, जैसे फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं रीडर्स राइटर्स के लिए, हमेशा लोगों का यही सवाल होता है कि अ, एक बात ये है कि एक्चुअली किंडल के पर्टिकुलरली किंडल के आने के बाद में पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया स्पेस को सेल्फ पब्लिशिंग के। अ, तो उसके बावजूद मतलब लोगों को पर्टिकुलरली जो लिटरेचर से ताल्लुक रखते हैं उनका ये एटीट्यूड होता है कि सेल्फ पब्लिशिंग इज नॉट not as high quality or not as good as traditional publishing। तो लोगों को मतलब थोड़ा उनका ये एटीट्यूड हो जाता है कि if it's published with an established publishing house, it just has that stamp of approval। और उसके बाद तब भी ना काफी यंग राइटर्स जो है वो हमेशा पूछते रहते हैं कि हम सेल्फ पब्लिशिंग करें या ट्रेडिशनल पब्लिशिंग करें। और मेन कंसर्न ये रहता है कि अगर हम लोग बहुत पैसा स्पेंड नहीं कर सकते पब्लिशिंग पे तो क्या हम सेल्फ पब्लिशिंग करें। तो एक तो हो गई प्रतिलिपि की बात, ठीक है, ये एक मतलब अच्छी ऐप है जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली फीडबैक मिल रहा है, बट ओवरऑल अगर आपको दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है, सेल्फ पब्लिशिंग भी ट्रेडिशनल पब्लिशिंग भी, अगर हम ओवरऑल दोनों चीज़ों की बात करें तो आप क्या इंसाइट्स ऐसे लोगों के लिए जो इतने कंफ्यूज्ड हैं क्या ऑफर करना चाहेंगे कि मतलब वो पैसे का इशू भी रख के और जो स्टैम्प ऑफ अप्रूवल है उन चीज़ों को नज़र में रख के वो मतलब क्या करना चाहिए उन्हें, अगर जैसे इस तरीके का कांस्टेंट फीडबैक हर सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है। सो ओवरऑल व्हाट इज योर सजेशन, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं दोनों चीजों के। मैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बताता हूँ। डिसीज़न जो इस फील्ड में जाना चाहता है, डिसीज़न उसका। मैं इन इन्फॉर्मेशन सारी आपको एक जगह इकट्ठी करके दे देता जी जी। हूँ। देयर आर जब ट्रेडिशनल की बात करते हैं, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ गंदगी का महारथी मैं बार-बार इसलिए दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट वे। देयर आर ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल पब्लिकेशन है, दिस इज़ द मोस्ट जो उसका एग्ज़ाम्पल है, जो मुझे सारे एग्ज़ाम्पल हुए वो इस किताब के ज़रिए हुए। तो जब मैं किताब छपवाने के लिए गया तो आई रोट द बुक और मैं गया प्रभात पब्लिकेशंस बहुत अच्छा पब्लिकेशन है। उन्होंने किताब
छापी, डेफिनेटली मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ा। दैट्स द फर्स्ट वे, पब्लिकेशन का फर्स्ट पार्ट जिसमें मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ा। लेकिन हर कोई जो जाता है वो उतना खुशकिस्मत होता नहीं। जी, जी। होता क्या है, पब्लिशर पब्लिशर जो होता है वो कहता है कि यार कोई नया बंदा मेरे पास आ रहा है, तो मैं रिस्क क्यों लूँ? मैं क्यों? राइट। रिस्क से बचाने के लिए क्या करता है? कहता है कि मैं आपकी 200 बुक्स छापूँगा, ₹200 की बुक्स है, आपका ₹40,000 हो गया और उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चेस मिला के ₹50,000 आप मुझे दे दीजिए, आपकी किताब मैं आपको छाप के दे देता हूँ, उसका प्रमोशन भी कर दूँगा। ये सेकंड वे हो गया उसके पब्लिशर का, जिसमें पब्लिशर कोई रिस्क नहीं ले रहा है, लेकिन जी, वो है कि आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है। फिर इसी पब्लिकेशन के अंदर एक एक थर्ड पार्ट भी आता है, जिसमें नोशन प्रेस जैसे इस जगह जो बन गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं आप एक कॉपी खरीदो, वो कह रहे हैं कि आप जितनी किताब छपवाना चाहते हो, हमसे उतनी किताब छपवाओ। तो दैट्स मान लीजिए आपने 10 किताब छपवाई, ₹200 की ₹2000 किताब छप गई। अब उसे आप घर में रखिए या बेचिए, आपकी इच्छा। वो और दूसरा हेल्प नहीं कर रहे हैं। अच्छा आपको हेल्प चाहिए, तो उनके अलग से पैकेज है। आप ₹1,00,000 का पैकेज कीजिए, आप लाइब्रेरी में भिजवा देंगे, आप सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स में आप पब्लिश भी कर देंगे, बुक फेयर्स में भी लगा देंगे। ये सेकंड वे हो गया। तो अब दिलचस्प ये होता है कि यही 3 तरीके हैं जो ओल्ड पब्लिकेशन के उसमें जाते हैं और एक नए न्यूकमर जो देखना चाह रहा है उसके पास यही 3 वे हैं। या तो फ्री में छपवाए और रॉयल्टी का वेट करे और कि जी, अब ये पब्लिशर वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है, नहीं ले रहा है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ पैसे देके किताब छपवाए और पब्लिशर को पैसा दे तो वो खर्च भी करेगा। तीसरा तरीका ये है कि आपने छपाई, आप खुद ही पब्लिश करो और खुद ही प्रमोट करो। दैट्स नॉर्मल पब्लिकेशन में 3। फिर यहीं आके आता है जो सेल्फ वाला जो हम बात कर रहे हैं। एक हो गया ऐप पे पब्लिश करना जैसे प्रतिलिपि है या और भी कई ऐप्स हैं। तो आपने लिखा और वहाँ पे आपने पब्लिश कर दिया। जब प्रतिलिपि स्टार्ट हुआ था तो वहाँ मैक्सिमम लोग जुड़े थे जो फ्री में लिख रहे थे और फ्री में पढ़ रहे थे। लेकिन सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई फील कि अब प्रतिलिपि ने थोड़ा मोनेटाइज़ करना शुरू अभी बहुत मामूली है लेकिन शुरू हो चुकी है मोनेटाइज़ेशन की। मैंने जो विदेशों में देखा, मैंने विदेशों के मॉडल देखे, तो वहाँ पे इस तरह की ऐप्स पे लिखना फ्री नहीं है। अगर आपकी कहानी अच्छी है तो रीडर्स आ रहे हैं, दे पे यू। तो ये मोनेटाइज़ का चैनल है जो इंडिया में आने वाले साल में 1 साल में, 1.5 साल में ये आ जाएगा। तो प्रतिलिपि एक ज़रिया है, ऐसे और भी कई ऐप्स हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं। दैट्स वन पार्ट ऑफ सोशल जो सेल्फ पब्लिकेशन के ऊपर बात करते हैं और दूसरी बात जो आपकी है किंडल है, गूगल बुक है, यहाँ कोई हार्ड कॉपी तो है नहीं, कोई खर्चा नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है आपकी रीच की। अगर आपकी रीच अच्छी है, तो आपने कुछ भी लिखा वो बिक जाएगा, राइट? मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ किंडल पे लिख रहे हैं। आई नो दैट और क्योंकि इसमें आपका जो खर्चा है वो मामूली है, बहुत मामूली खर्चा है। इट्स इसलिए जो भी आपका इनकम हो रही है सब प्रॉफिट जी, करेगा अगर आपका एक नेम एस्टेब्लिश हो गया है। नए के अंदर आके आप कोई भी इंसान मान लीजिए आप अपने से देखिए कोई भी, किसी नए शख्स की किताब आप क्यों पढ़ना चाहेंगे? ऐसे कौन कोई भी राइट। इंसान किताब को पढ़ने से पहले हिचकता है। इसीलिए जो किताब बिकती है वो बहुत बिकती है, जो नहीं बिकती है वो बहुत बहुत कम बिकती है। दैट्स अ सिंपल थिंग। तो इसीलिए जो दोनों ही चीज़ें हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। जिसको जो फैसला करना है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि शायद शुरुआत में थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नए जो जी, राइटर्स होते हैं और एक पब्लिकेशन हाउस पे जाएँगे तो खर्चा बहुत है, सेल्फ पब्लिकेशन पे हाउस पे जाएँगे तो पब्लिसिटी नहीं है। इन दोनों प्रॉब्लम से राइटर्स को जूझना पड़ता थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अच्छा, आप अपनी ये जो सटायर की बात कर रहे हैं, है। जी, जी। गंदगी के महारथी, इसके बारे में कुछ बताइए? ओके गंदगी के महारथी जब एक मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोरोना के आने से पहले कोरोना की चेतावनी इसमें जारी कर दी गई थी कि ऐसी बीमारियाँ आ सकती। ये सारी वो आदतें हैं जो हम इंडियंस नहीं करते हैं। तो ये गंदगी के महारथी बेसिकली उन लोगों के बारे में किताब थी जो ये फॉलो ही नहीं करते हैं। अब अभी भी वही लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। अभी भी वही लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। कोरोना तो एक बीमारी है, हम तो हर साल में 2 बार मौसम चेंज जब भी होता है, हमारा देश वायरल से जूझता ही जूझता है। जी, हर जी, फैमिली बिल्कुल, बिल्कुल। खर्चा 5 या 6,000 रुपए तो मौसम चेंज होते ही वेदर चेंज होते ही आ ही जाता है। तो उसी को देखते हुए मैंने लिखी थी कि लोग थोड़ा समझें, थोड़ा बदलाव लाएँ। तो आपको इसी के अंदर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है
और ये रियल लाइफ कैरेक्टर था जिसके ऊपर मैंने कहानी लिखी थी, अजय तिवारी फॉरेन रिटर्न। तो बेसिकली कहानी का जो एक छोटा-सा हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मुँह में खैनी दबाए अजय तिवारी पूरी फॉर्म में थे। फुटपाथ पर चलते-चलते गीत उनके मुँह से बस छलक ही पड़ रहा था। न जाने कैसे खैनी और गीत दोनों को मुँह में दबाए, दोनों का एक साथ मज़ा लेते हुए चले जा रहे थे। ये अजय तिवारी का अंदाज़ है। बालों में जितनी सफेदी है, बातें उतनी ही मसालेदार। कॉल उठाते उससे पहले ही पच कर देते हैं। तिवारी जी जब जल्दबाजी में होते हैं, तो पच से पीक फेंकते हैं और जब जल्दबाजी नहीं होती, तो पिचकारी निकालते हैं, पिच करके धीरे-धीरे। हाँ, त्रिपाठी जी, बस आ ही गए। सड़क पार कर रहे हैं। आइए, आइए आपको ज़बरदस्त किस्से सुनाते हैं। फ़ोन काटकर जीप को होठों पर फिराते हुए तिवारी जी आगे साहित्यिक गलियारे में कनॉट प्लेस का कॉफ़ी हाउस बौद्धिक दिग्गजों के बीच काफ़ी मशहूर है। जहाँ वो कहानी से लेकर राजनीति की नानी सभी पर आराम से चर्चा करते हैं। बजट में खाने-पीने की चीज़ों के साथ-साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यहाँ का कोई नहीं पूछता, "सर, कुछ और लेंगे क्या?" या कोई गलती से या कोई अचानक ही टेबल पर चाय रख जाए भगाने के लिए। यहाँ आप चाहें तो पूरा दिन बिना कुछ खर्च किए भी बिता सकते हैं। वैसे तिवारी जी को बजट की चिंता नहीं थी। वो अमेरिका से लौटे थे, काफ़ी कुछ किस्से कहानियाँ साथ करके लाए थे। ओह! आए अमेरिका, अब तो हो गए फॉरेन रिटर्न। त्रिपाठी जी ने हँसकर कहा। उधर से नाथ साहब भी आ पहुँचे। ज़रा चौड़े बदन और गरम मिजाज के थे। बड़े आदमी हो गए हैं। अ, हाँ, बड़े आदमी। अच्छू! अजय तिवारी को जानने वाला हर शख्स जानता था कि तम्बाकू खाएँगे तो पिच करेंगे और नहीं तो आतू। ये बेसिकली पूरी कहानी ये इंटरेस्टिंग तरीके से पिरोई गई उन लोगों के बारे में जो खैनी खाकर दीवारें गंदी करते हैं या जगह-जगह थूकते हैं। तो दैट्स द ये पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट था। पूरी कहानी तो बहुत बड़ी है, सुनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक हुँ। छोटा-सा आइडिया दिया। हाँ, और ऐसे लोग तो हमें हमेशा ही मतलब मिलते ही रहते हैं आस-पास। जी, अब सारी बिल्कुल। दीवारें ही हम देखें सोसाइटीज़ के आस-पास सब जगह मतलब गंदगी तो ख़ैर है ही। तो हाँ जी, थैंक यू ये करके दिखाने के लिए। और अब इसकी बात करें अंगूठी का भूत की, तो जी, नाम को ही हॉरर स्टोरी है, बट जैसे हॉरर का जॉनर ये होता है कि इट्स टॉकिंग अबाउट लेटेंट फियर्स एंड एप्रीहेंशंस, बट दिस स्टोरी कंटेन्स अ लॉट मोर। तो ये लव के बारे में, डिजायर्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, या जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उनसे हम किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो जब आपने लिखना शुरू किया, जब आपको ये आइडिया आया, सो were you at any point unsure, so when you started out, right? Because you were getting constant feedback, so you knew it was being very popular, and it was being liked by everyone, but when you started out, when you had this idea, were you hesitant in publishing that first chapter, because एकदम ही अलग तरीके की स्टोरी है, तो आपको डाउट्स थे या कुछ ऐसा लगा कि जब आप नया ट्राई कर रहे हैं तो कुछ डर लगा, या आपको लगा कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट थे कि अगर मैं कुछ एकदम हटके कर रहा हूँ तो लोगों को पसंद आएगा ही आएगा? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं अलग हट के कर रहा हूँ। द थिंग इज़ दैट कि एक आइडिया मेरे पास था, मुझे एक बात कहनी थी, जो इस पूरी कहानी में कही गई है। तो वो आइडिया इतना प्रोमिनेंट था कि मुझे वो कहना था, लेकिन मुझे फॉर्म नहीं मिल रहा था। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कहानी या जो भी कंटेंट है वो अपना फॉर्म खुद ले लेता है। तो अचानक से कहानी घूमे जा रही है, लेकिन कोई फॉर्म नहीं, कहानी नहीं बन रही है। आइडिया आइडिया डेवलप हो रहा है दिमाग में। अचानक से मैंने एक अंगूठी देखी। इन मेरे मेरे कुली हैं, वो बैठी थी, उनके हाथ में एक अंगूठी थी। अचानक से लगा जैसे सारी चीज़ें अचानक सिस्टमैटिक हो गई, सब चीज़ें। तो वो अंगूठी देखते ही पूरी कहानी पूरी की पूरी कहानी अचानक से स्ट्राइक कर गई। फिर मैं आधा घंटा, 1 घंटा बैठा, मैंने कहानी के पॉइंट्स लिखे, मुझे कहानी कैसे-कैसे बढ़ानी है। तो जब मैंने कहानी लिखनी शुरू करी थी, मुझे उससे पहले मालूम था कि मैं ये कहानी लिखने वाला हूँ। हाँ, फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही मैंने प्रतिलिपि पे पब्लिश किया तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने जो सोचा वो सही सोचा है, वो गलत ट्रैक नहीं। तो वो जो सेल्फ डाउट था वो हट गया। लेकिन हाँ, कहानी मेरे दिमाग में पहले से क्लियर थी कि मुझे यही लिखना है और बिना क्लियर हुए आप कहानी लिख नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एपिसोड लिखने के बाद आपने फिर सोचा कि कल क्या लिखेंगे। जी, जी, जी। इवेंट्स होते हैं वो डे टू डे लाइफ से जुड़ जाते हैं।
जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई घटना हुई, इंटरेस्टिंग घटना हो गई, वो हो सकता है आपकी कहानी का हिस्सा बन जाए, दैट्स फाइन। लेकिन बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कैरेक्टर्स वो चेंज नहीं होते। तो ऐसे ये कहानी तो मुझे एकदम क्लियर थी कि मुझे पता था कि ये घोस्ट स्टोरी नहीं है, ये रिलेशनशिप स्टोरी है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई नो इट। मुझे मालूम था दिस इज नॉट ए हॉरर स्टोरी, दिस इज ए रोमांटिक स्टोरी। चाहे भूत हो, कहानी का नाम में भूत, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। तो सस्पेंस, ड्रामा है, सब सब चीजें पहले ही जैसे पक चुकी थी। एट द टाइम वो अंगूठी मैंने देखी तो मुझे लगा ये कहानी बन गई। तो उसके बाद मैंने कहानी लिखनी शुरू करी। अ, और रही बात इसकी कि ऐसा कोई मिशन लेके नहीं निकला था, ये मुझे बहुत बहुत बड़ा बदलाव करना है, मुझे नया ज़ोनर ट्राई करना है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब जब आप लिखते हैं तो समटाइम्स जो कंटेंट है, जो आइडिया है, वो इतना प्रोमिनेंट हो जाता है, आप लिखे बिना रह नहीं सकते। एक चीज़ बने तो बने। एक एक रचनाकार सिर्फ़ नई चीज़ बनाने के लिए लिखने नहीं बैठता, नॉर्मली कोई आप भी नहीं लिखेंगे। लेकिन आपके पास कुछ कंटेंट है कहने के लिए, वो अपनी फ़ॉर्म तलाश रहा है। हाँ, तो डेफ़िनिटली आप अगर आपने इतने साल पढ़ाई करी है, आप तरह-तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके पास चीज़ें कहने के तरीके हैं। तो यही था। मुझे लगता है कि जैसे भूतों के बारे में बात होती है कि भूत डरावने होते हैं। व्हाट आई फील कि एक तरह का मिथ है। किसने भूत देखा है? कितने लोगों ने भूत देखा? तो मतलब इट्स अ मिथ। इट्स सेम इसी तरह रिश्ते में प्यार सबसे ज़रूरी होता है, ये भी एक मिथ है। मैं नहीं मानता और ना जो रिसर्च आती है वो भी मानती है इस बात। कोई भी रिलेशनशिप प्यार से पूरा नहीं होता। ये मेरी सोच है। एक रिलेशनशिप रिस्पेक्ट भी ज़रूरी होती है। अगर 2 लोगों के बीच में रिस्पेक्ट नहीं है आपस में, लेकिन वो रिलेशनशिप टिकेगा नहीं। अगर 2 लोगों में ट्रस्ट ही नहीं है, वो रिलेशनशिप टिकेगा ही नहीं। 2 लोगों में केयर नहीं है, तो रिलेशनशिप टिकेगा ही नहीं। प्यार 4 खंभे तो प्यार 1 खंभा है। तो ये मिथ है कि प्यार ही सब कुछ है। खासकर छोटी एज के अंदर इस तरह के फीलिंग्स बहुत चलती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा। तो वो जो मुझे लगता है, वो मुझे कहने के लिए एक फॉर्म चाहिए तो मुझे मिला। जैसे ही फॉर्म मिला, उसने कहानी की शक्ल अपने आप ले ली। और उसका लोगों ने जो रिस्पॉन्स किए, बाप रे बाप! लोगों ने कहा कि कहानी उन्होंने एक सिटिंग में पूरी करी। मतलब वो कहानी पढ़ने बैठे, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, उसका डाँट पड़ रही है, पीछे से पढ़ती रहे, लेकिन जब तक कहानी पूरी नहीं उठे नहीं। दैट्स द पावर पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। और इसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं लगातार लिखूँ कि शायद भगवान ने कुछ दिया है। आई थिंक ये बड़ी सिंबॉलिक चीज है कि आपने स्टोरी लिखनी थी रिलेशनशिप्स के बारे में एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, और आपको रिंग से ये आइडिया आया, दैट यू टाई ऑल ऑफ दिस टुगेदर। आई थिंक वो बड़ा, आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट। और अच्छा, और एक चीज, जैसे आपने कहा भूत किसने देखा है, लेकिन सब लोग कहते रहते हैं कि दिल्ली में बहुत भूत हैं, एंशियंट टाइम्स के भी हैं। वी नो देयर हैव बीन मेनी टेल्स अबाउट दिस, कि एंशियंट टाइम्स के, मेडिवल टाइम्स के, और आजकल के भी। तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ था जो आपने स्टोरी दिल्ली में सेट की, या बस जनरली ऐसे ही दिल्ली को चूज कर लिया? मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि बचपन पूरा दिल्ली में बीता है। अच्छा। अब जैसे पहला पेज शुरू होता है चांदनी चौक से। अब जैसे मैं पहला पेज का छोटा-सा टुकड़ा सुनाता हूँ आपको। तो दैट्स हाउ आई सॉ चांदनी चौक। लाल किले की लाल बत्ती को पार करते ही सामने चांदनी चौक की रौनक शुरू हो जाती है। चांदनी चौक में बड़े-बड़े शोरूम हैं, लेकिन यहाँ के हर कोने पर आपको एक दूसरा ही बाजार नज़र आएगा। कभी-कभी लगता है जैसे दोनों राहगीरों की नज़र खींचने की होड़ करते हैं, लेकिन कभी लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यहाँ हर दीवार की अपनी कहानी है और हर खंबे के पास अपनी ही दुनिया। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब ये ऑब्जर्वेशन मैं कानपुर के बारे में नहीं कर सकता। जहाँ मैं रहा हूँ, जो चीज़ें जी मैंने जी। देखी, तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, वही उसे ऑथेंटिकेट करता है। तो जब मैंने चांदनी चौक को देखा, तो एक तरफ बड़े-बड़े शोरूम है, उसके जस्ट सामने उसी खंबे के पास में एक कोई खोमचे वाला खड़ा हुआ है। एक कोई कान की बाली लेके खड़ा हुआ है। किसी ने जुराब के स्टॉल लगा रखे। तो ये चांदनी चौक का जो कल्चर है, ये आपको बड़े-बड़े मार्केट्स में नॉर्मली अगर कहीं बहुत बड़े पाश मार्केट है, वहाँ आपको ऐसे नहीं मिलते हैं खोमचे वाले वगैरह। चांदनी चौक का वही कल्चर है, जो मैंने महसूस किया, इसीलिए दिल्ली में प्लेस हुई है स्टोरी, क्योंकि मेरे सारे एक्सपीरियंस दिल्ली के हैं। तो वो जो चीज़ें मैं इमोशनली कनेक्ट कर सकता हूँ, जो मैं ड्रामा क्रिएट कर सकता हूँ, वो तभी हो पाता है। मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी आपकी कहानी में, वो ये थी कि नेहा, शी इज एन अर्बन वर्किंग वुमन, राइट? तो राइट। उसके जो
thoughts हैं, emotions हैं, it's something I think that women can connect with a lot. So आपने अपना जब protagonist ऐसे choose किया एक लड़की को who's a working woman, who's a modern educated woman and who's who has certain expectations from life, तो आपकी आपने कोई challenges face करे एक वुमन कैरेक्टर को इस तरीके से मोल्ड करने में, क्या थे वो challenges? ये क्वेश्चन मेरा पहली बार नहीं आया है। I think it's मेरी a question that everybody would have because it's मेरी it's like एक when एक जो पाठक हैं उन्होंने मुझसे सवाल किया था, जो आप सवाल कर रही हैं उससे कनेक्ट करते इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आर यू मैन? मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप वुमेन हैं और मैन का नाम लेके लिख रहे हैं। तो दैट वाज़ द मतलब दैट्स फैसिनेटिंग। हँसी भी आई, हैरानी भी हुई, ये भी लगा कि क्या वाक़ई में मैंने इतनी अच्छे से कनेक्ट कर लिया है। तो ये चीज़ जो आप कह रही हैं, हाँ, ये मैंने कई लोगों ने मुझसे कहा है कि हाउ कैन इट पॉसिबल कि किसी फीमेल के मन को आपने इतनी अच्छी तरह से पढ़ा कैसे? तो शायद आपकी लाइफ़ के एक्सपीरियंस होते हैं जो या मैं यूँ कहूँ कि कोई जो रचनाकार होता है, जो लिखने वाला होता है, उसकी ऑब्ज़र्वेशन पावर आम लोगों से ज़्यादा होती है। वो शायद वो चीज़ें भी देख पाता है जो आम लोग नहीं देख पाते। वो शायद ऐसी फीलिंग्स को समझ पाता है जो आम लोग नहीं समझ पाते और शायद फ़ील भी करता है। और शायद उसी वजह से ये सब चीज़ें आई हैं। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो आपने अ, जब किसी लड़की का दिल दुखता है, तो वो अपने सबसे करीबी के आगे दिल का हाल बयाँ कर देना चाहती है। वो बोलना चाहती है, वो रोना चाहती है, वो चाहती है अपने करीबी को अपनी भावनाओं में साझेदार बनाना। अक्सर होता उल्टा है। अक्सर पुरुष महिलाओं के दर्द को सुनने की बजाय किनारा कर लेते हैं। अपने दुःख के समय पुरुषों के बर्ताव करने का तरीका महिलाओं से बिल्कुल अलग होता है। पुरुष अकेला रहकर एकांत में शक्ति बटोरते हैं, जबकि महिलाओं के लिए शक्ति बेमानी है। वो साझेदारी के रास्ते की तलाश करते हैं। फिलहाल नेहा भी एक साझेदार को तलाश कर रही थी। ये एक कॉमन टेंडेंसी है फीमेल्स के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व की, कि जब वो परेशान होती हैं, दे वांट टू शेयर। वो चाहती हैं बातें करें। तो इसीलिए गॉसिप्स की बात आती है कि महिलाएँ पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा शब्द बोलती हैं। ये बेवजह नहीं है। तो वो शेयर करना चाहती है, पुरुष शेयर करना नहीं चाहते। पुरुषों के शेयर के टॉपिक्स होते हैं, राजनीति में ये हो गया, खेल में ये हो गया। महिलाओं के टॉपिक्स कुछ भी हो सकते हैं, तितली भी हो सकती है, हवा भी हो सकती है, मौसम भी हो सकता है, किचन भी हो सकती है, सास भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, एनीथिंग दे वांट टू शेयर। ऐसा लगता है 2 अलग-अलग प्रजातियाँ हैं। उनके काम करने के तरीके, सोचने के तरीके सब अलग हैं। तो वो जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी वो मेरी किताब का हिस्सा बनी। तो दैट्स व्हाई जो आप कह रही हैं कि हाँ, गर्ल जो नेक्स्ट डोर गर्ल मैंने कैरेक्टर क्रिएट किया, वो नेहा का कैरेक्टर ऐसा है इससे हर महिला अपने आप को कनेक्ट करती है। क्योंकि जो नेहा की मुश्किलें हैं, जो नेहा की दिक्कतें हैं, वो वही दिक्कतें जो हर महिला को झेलनी पड़ रही हैं। जी और है तो जी, तो वो सब जब झेल के आगे बढ़ती हैं तो उनको जो जो होता हुआ देखा वही किताब की शक्ल दी है। आपने जब ये बात कही ना कि शायद राइटर्स ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा समझते हैं चीज़ों को, तो मुझे उससे एक चीज़ याद आ रही, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे हमको कि जब भी हम लोग कभी मतलब उनकी ना हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो काफ़ी वेल रेड थे। तो जब भी कुछ रीड करते थे हमको, कोई भी पोएट्री बताते थे, तो हमेशा ये कहते थे, "जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि।" तो हमेशा राइट। यही लाइन बोलते थे, तो वो हमेशा मतलब बचपन से इतनी सुनी थी हमने उनसे, वो हमेशा उनको उनकी फेवरेट लाइन थी ये हमेशा बोलने की, जब क्योंकि पोएट्री की बात करते थे कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आई थिंक आप वही बात कह रहे हैं। और मैं एक और चीज़ याद दिलाता हूँ यहाँ पे, जब मैंने लिखना शुरू करा था बहुत पहले मतलब कॉलेज टाइम में, तो प्रेमचंद ने लेखकों के लिए कुछ सलाह दी। उसके अंदर मालूम है सबसे पहली सलाह क्या है? कि अपने कागज़ और डायरी हमेशा साथ रखें। अब तो फ़ोन है, तो फ़ोन पे भी टाइप कर सकते हैं। आस-पास जो हो रहा है, उसको लिखते जाएँ। लोगों ने कैसा बर्ताव किया, लोग कैसे चल रहे हैं, लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। ये सारा इसीलिए कि ताकि ऑब्ज़र्वेशन बढ़ सके। तो ये जो मतलब अब से कितने साल पहले प्रेमचंद ने बोला, वो आज भी सच है। आपको ऑब्ज़र्व करना ही पड़ेगा, आप लिखना चाहते हैं। आपने ये तो शेयर किया कि कैसे रीडर्स कितना रिएक्ट कर रहे थे और कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। और मैं अमेज़न पे भी देख रही थी आपकी बुक के नीचे जो रिस्पॉन्सेज़ थे, दे वर ऑल वेरी पॉजिटिव रिव्यूज़।
तो आपकी लेकिन फैमिली की क्या रिएक्शन रही इस बुक को, अंगूठी का भूत? आपके फैमिली मेंबर्स की, फ्रेंड्स की? ओके, मैं 3 रिएक्शंस आपको बताता हूँ। पहला है रिएक्शन मेरे बेटे का। हम तो ये हिंदी मीडियम में पढ़े हुए लोग हैं, तो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, उसकी सारी लिटरेचर जो पढ़ता है वो सब इंग्लिश का पढ़ता है, हिंदी का पढ़ता ही नहीं है। फैंटेसी पसंद है तो फैंटेसी भी सारी इंग्लिश राइटर्स की पढ़ता है। हिंदी की किताब को हाथ नहीं लगाता, तो मेरी पहली किताब को तो उसने हाथ भी नहीं लगाया। जब सेकंड किताब का पहला कॉपी मेरे पास आई, तो रात का टाइम रहा होगा, वो पढ़ने बैठा और एक सिटिंग में उसने पूरी कंप्लीट कर दी। तो रात को कहानी कंप्लीट करके उठा, कहता पापा हो गया। मैंने कहा तूने पढ़ ली किताब? कहता हाँ, पढ़ ली। तो मैंने कहा कैसी लगी? कहता है हिंदी में भी अच्छी कहानियाँ होती हैं, मैं तो समझता था इंग्लिश वाले अच्छी कहानी लिखते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, होती हैं, हिंदी की दुनिया बहुत बड़ी है। हिंदी के लेखन में बहुत बहुत तरह के राइटर्स हैं, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो पता कैसे चलेगा? तो बिल्कुल। थैंकफुली इट्स अ प्राउड मोमेंट कि जब आपका बेटा आपको आपको हीरो मान रहा है कहानी लिखने के लिए, दैट्स रियली अचीवमेंट, क्योंकि ये पहली कहानी में नहीं हुआ कि मैंने एक किताब लिखा, तो ये फीलिंग मुझे नहीं आया। ठीक है? क्योंकि हाँ, ठीक है और इस टाइप की बातें एक चैप्टर पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन ये कहानी जब पढ़ी तो खत्म हो गई। दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ वाइफ का, जब अपनी फैमिली का पूछा, तो जब मैंने ये कहानी लिखी, तो मैंने वाइफ हिंदी टीचर है मेरी, तो मैंने कहा कि इसमें ड्राफ्ट मैंने उन्हें पढ़ाया था। तो जब मैंने ड्राफ्ट पढ़ाया, तो मैंने कहा कि इसमें करेक्शंस कर। तो पहला पेज पे करेक्शन किया, दूसरे पे किया, 5-6 पेज के बाद तो करेक्शन करना ही छोड़ दिया। मैंने कहा सारी खाली पड़ी है। तो मैंने क्या हुआ? नहीं कहानी इतनी अच्छी लगी, करेक्शंस का याद ही नहीं रहा। तो मैंने कहा यार अब तो दोबारा पढ़ के करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो दैट वाज़ सो गुड फीलिंग कि एक पूरा जो पढ़ रहा है वो लगातार पढ़ रहा है। तो दैट्स अ रियली प्राउड प्राउड मोमेंट। यही हमारे दोस्तों का रहा कि पूछ रहे हैं कि अ, इतना रोमांस बुक के अंदर कैसे आ गया? तुम तो लगते नहीं रोमांटिक। मैंने कहा ये कॉम्प्लीमेंट समझू इसे मैं क्या? तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम लोग करते हैं न्यूज़ में काम, और न्यूज़ में हर चीज़ नेगेटिव। न्यूज़ में जब आप जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, हर चीज़ में इनसेंसिटिविटी। न्यूज़ में जो इंसान जाता है नॉर्मली सेंसिटिव, सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि वो न्यूज़ में जाता ही इसीलिए है क्योंकि वो आस-पास की चीज़ों से परेशान होता है। लेकिन लगातार नेगेटिव खबरों में रहते हुए, लगातार टाइम से रेस करते हुए इनसेंसिटिविटी अंदर आ जाती है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताया सुनाता हूँ। कहीं आग लग गई, तो वहाँ से एक आवाज़ आएगी, बहुत अच्छे विज़ुअल आए। आग लगने के विज़ुअल अच्छे कैसे हो सकते हैं? लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। इसी तरह आवाज़ आती है कि मर्डर कौन कर रहा है? अब मर्डर मतलब मर्डर की जो स्टोरी है, कर कौन रहा है? लेकिन नॉर्मल बातचीत के अंदर शब्द हो जाता है, मर्डर कौन कर रहा है? या करप्शन किसके पास है? कोरोना कहाँ है? मतलब इतनी मौत देखने के बाद में, इतने केसेस देखने के बाद में कहीं न कहीं एक इनसेंसिटिविटी आ जाती है, और वो इनसेंसिटिविटी हर हर न्यूज़ वाले के अंदर होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो इनसेंसिटिव नहीं है। तो राइट। अब जो जो ये पार्ट है, जो बेसिकली हमारे अंदर का पार्ट है, जो जो आदर्शवादी है, जो रोमांस है जिसके अंदर, वो कहीं न कहीं सबके नीचे दब जाता है, और जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी फॉर्म में, चाहे ड्राइंग हो, स्केचेज़ हों, स्टोरीज़ हों, लिटरेचर हो, तो कहीं न कहीं आपका नेचुरल सेल्फ निकल के आता है, जो बहुत ज़रूरी है। आपके एज़ अ इंसान बने रहने में ये बहुत, ये सब इस किताब ने मुझे वापस दिया है। मुझे एहसास हुआ है कि मैं आज भी रोमांटिक हूँ। मुझे एहसास हुआ है कि आज भी मैं क्रिएटिव हूँ, और मैं नई चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ, लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ। मुझे लगता है आपसे ये सवाल बहुत लोग पूछ चुके होंगे, लेकिन मैं पूछे बिना नहीं रह पाऊँगी। आप भूतों में विश्वास करते हैं? भूतों में विश्वास करना ना करना, ये बड़ा एक टेक्निकली इश्यू ये है कि क्या मैंने भूत देखे हैं? मैंने भूत नहीं देखे हैं। हाँ। क्या मैं विश्वास करता हूँ? हाँ, मैं करता हूँ। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो आपको भूतों में विश्वास करना पड़ेगा। कहानी ये होती है कि एक मेरा जो मानना है, दैट्स एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है। आपको फील हो ना हो, या हो सकता है आपका ऐसा वास्ता ना पड़ा हो, या हो सकता है कि आप उस लेवल पे आ जाएँ कि आस-पास की आप एनर्जी को फील करने लगें। तो आप दोनों एनर्जी महसूस कर। हाँ, अ, भूत से नॉर्मली हम मतलब ये रखते हैं कि अतीत। तो आप जब अतीत में अटक जाते हैं, तो भूत हो जाते हैं। इसी को हम अगर जिंदा इंसान के संदर्भ में कहते हैं सठिया गए।
तो सखियाना उम्र का उससे नहीं है कि 60 साल के हो गए। सखियाना ये हो गया कि आप पकड़ के बैठे हुए हैं कि मैं, अरे हमने तो जवानी में ये किया था, हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था। दैट्स आप भूत से चिपके हुए हैं। दैट्स पार्ट निकल गया। आपने जो किया था, नहीं किया था, आप क्या थे, क्या नहीं थे, वो मैटर नहीं करता आज। आज मैटर ये करता है आप आज क्या हो। तो ये चीज़ें जब एनर्जी पकड़ के रखती हैं, मान लीजिए जैसे भूतों की बात करें, तो क्यों मेरा भूत अच्छा है? क्यों इसलिए अच्छा है कि हर चीज़ नेगेटिव हो भूतों में ज़रूरी नहीं है। कोई अतीत में टिका रह जाए अच्छी वजह से, वो भी हो सकता है। कोई अतीत में चिपका रह जाए बुरी वजह से, वो भी हो सकता है। तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ, भूत होते हैं क्योंकि अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं, बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, दोनों चीज़। भगवान है तो शैतान भी है। इसलिए मेरा मानना है कि हाँ है। हाँ, सीधा-सीधा वास्ता इसलिए नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने जैसे भानगढ़ का किला में होके आया और मैंने कोशिश की थी कि नज़दीक से महसूस करूँ और वो मेरी कहानी का हिस्सा भी बना। एक अगली कहानी मैंने लिखी थी, एक अगला नॉवल जो लिखा उसका हिस्सा भी बना है। भानगढ़ के ऊपर काफ़ी रिसर्च है और काफ़ी काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ की चीज़ें करी हैं। हाँ, सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे भूत मैंने देखा है, तो मैंने अभी तक नहीं। हम मुझे लगता है सबके साथ ऐसे होता है, हम कह देते हैं नहीं नहीं हम नहीं मानते, भूत भूत कुछ नहीं होता, और फिर कहने के बाद अंदर हल्का सा डर लगता है, अरे कोई भूत नाराज तो नहीं हाँ, हो गया। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और फिर हॉरर स्टोरी देख के पहले बहादुरी से देख लेंगे, फिर रात को जब उठ के जाना होगा पानी पीने तो लगेगा कोई आ तो नहीं रहा मेरे पीछे। तो कहीं ना कहीं वो माइंड में है कि कुछ है शायद। डर 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 बहुत प्रोमिनेंट है और डर नेगेटिव एनर्जी डर जो है मेरे हिसाब से अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस किताब के अंदर मैं फिलोसफी का स्टूडेंट आप कह लीजिए साइकोलॉजी का स्टूडेंट कह लीजिए तो वो चीजें मैंने इसके अंदर है मेरी कि जो डर की पूरी परिभाषा है कि डर क्यों जरूरी है क्यों जरूरी नहीं है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है किताब को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा डर हमारे जीवन का अहम हिस्सा है डर खत्म हो गया तो आप लाइफ में आप समझ लीजिए बहुत बड़ी मुसीबत है डर आपको बहुत चीजों से बचाता है आपका सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है डर तो हाँ इसलिए बहुत जरूरी है तो इसलिए डर गलत नहीं है और शायद यही रीजन है कि हम बिजली कड़कती बिजली से डर रहे हैं भूतों से डर रहे हैं क्योंकि इसी ने हमें जिंदा रखा इसी ने हमें बचाया है इतने पुराने समय से हाँ बट वही है कि अगर हम डर को ओवर पावर होने दें तो वही फिर नेगेटिव एनर्जी जो आप कह रहे हैं जैसे वो बन जाए हमारे लिए, अगर हम किसी भी चीज को ओवर पावर होने दें अपने ऊपर। अच्छा एक सवाल और था, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है अंगूठी का भूत का? मेरा फेवरेट कैरेक्टर मेरा ख्याल जिसने भी किताब पढ़ी है उसका फेवरेट कैरेक्टर जय जो जी। जिससे भी मेरी बात हुई जहां से मुझे समझ में आया मेरे लिए दो वजहों से जय मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एक इसलिए है क्योंकि जय ने मेरी जो कविताएं थी उसकी डायरी में थी जो कॉलेज में मैंने कविताएं लिखी थी वो जय की डायरी में पहुंच गई तो उनमें से कुछ कविताओं को मैंने इस किताब में जगह दी अपनी कॉलेज की जो मेरी पोएम्स थी तो जैसे मैं आपको एक पोएम सुनाता हूँ छोटी छोटी सांसों की तरह तुम्हारी याद सांसों की तरह तुम्हारी याद न आना थाम सकता हूं न जाने पर बस है मेरा सच ये है सच है तो इतना ही कि यही मेरे जीवन की वजह है इसी के आगे अगला पैरा है तुमसे अच्छी तुम्हारी याद है कभी अकेला रहने नहीं देती जब होने लगता है तन्हा ये मन छाकर मुझे बाहों में भर लेती है तरसाती रहो तुम दूर अड़ी वो यही है मेरे पास खड़ी तो दैट्स रोमांस जो जिंदगी को देखने का रोमांटिक नजरिया जिसकी हम बात कर रहे थे तो जय ने ये चुराया है मेरा इससे थोड़ी शिकायत है लेकिन स्टिल और दूसरा और दूसरा जय के साथ जो चीज है वो ये है कि टेक्निकली भूत होते हुए भी ही इज सो पॉजिटिव ही इज सो ह्यूमन जैसे उसके पास ऐसी नॉलेज है जो एक आम इंसान के पास नहीं जय कैरेक्टर की खासियत ये है जैसे पीड़ा को स्वीकार करो तो ताकत बन जाती है हार को स्वीकार करो तो जीत बन जाती है गम को स्वीकार करो तो खुशी बन जाती है जब आप चीजें बदल नहीं सकते तो उन्हें स्वीकार करना ही बेहतर होता है ये सीख है जो जय की सीख है और जाहिर तौर पे लोग अगर पढ़ेंगे तो सीखेंगे समझेंगे और बहुत कुछ है इस किताब में सीखने वाला समझने वाला बहुत कुछ तो मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर जय ही है, आई थिंक ज्यादातर लड़कियां जो पढ़ेंगी शायद उनका यही होगा। है मैं आपको तो मोबाइल पे मैं भी अगर स्क्रीनशॉट में आपको भेज पाया अगर आप कहें तो भेज भी दूंगा स्टिल मेरे से जो दो डिमांड होती हैं एक मुझे वो अंगूठी दिला दो
और मुझे जैसे मिला दो। ये 2 डिमांड्स हैं जो लड़कियां लाइन लगा के कर रही हैं कि प्लीज किसी भी तरह से एक बार वो या तो अंगूठी मेरी जिंदगी में आ जाए और या तो जय आ जाए। तो दैट्स सो मच ऑफ पावर ऑफ दैट कैरेक्टर। तो उन्हें लगता होगा कि शायद आप जय को जानते होंगे, तभी आपने ऐसे लिखा है उसके बारे में, तो मिलवा दो, हमें मिलवा दो। Definitely. Any forthcoming works that you'd like to talk about, और इस बुक का सीक्वल लिख रहे हैं क्या आप, अंगूठी के भूत का? इस बुक का सीक्वल लिखा जा चुका है और इतनी लोकप्रिय हुई थी, इतनी लोकप्रिय हुई थी कि लोगों ने डिमांड कर करके मुझसे लिखवाई। और मैं जैसे आपको मैंने कहा था 4 पॉइंटर्स होते हैं, सेटिस्फेक्शन होता है, डाउट हट गया, सेटिस्फेक्शन मिल गया, डाउट भी हट गया, कम्युनिकेशन भी खुल गया। तो खट से आप लिखने के लिए आप एग्री आगे बढ़ जाते हो, एग्री कर जाते हो। तो इस बुक का जो सीक्वल लिखा है वो शायद इससे भी बेहतर है। इससे भी बेहतर इन द सेंस कि जो मेरे पास रिस्पॉन्स आए हैं, आप समझ लीजिए अगर आप इसको 10 में से 10 देंगे, तो आपको उस किताब को 10 में से 15 देने पड़े। दैट इज सो मच ऑफ पावर, दैट्स लाइफ चेंजिंग बुक। होप सो कि कुछ समय में आए, क्योंकि सारी चीजें अपने हाथ में नहीं है, पब्लिशिंग के ऊपर जब जाते हैं तो अपने हाथ में है नहीं, लेकिन इट्स ए गुड बुक, गुड। और रही बात तो इट्स अवेलेबल ऑन प्रतिलिपि? अभी तो है, शायद हट जाएगी लेकिन जल्दी वहां से, क्योंकि जब बुक पब्लिशिंग के लिए जाएगी तो प्रतिलिपि से हट रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि बुक का प्रमोशन हो रहा है कि आपने बुक एक सेल्फ पब्लिकेशन पे गया, फिर प्रमोशन होकर बुक बन गई, जो अभी अंगूठी का भूत के साथ हुआ है। और आने वाले दिनों में और भी किताबों के साथ मेरा हो रहा है। मैंने कौन था लिखा, इट्स समथिंग टाइम लैप्स की स्टोरी है। मतलब समझाना बड़ा मुश्किल है उस कहानी के बारे में, लेकिन वो कहानी ऐसे शुरू हुई कि एक ने मुझे चैलेंज किया कि मैं ऐसी कहानी, मैं ना आखिरी पेज पढ़ती हूँ कहानी का, एक लड़की ने मुझसे कमेंट किया था, और मैं उस पेज को पढ़ने के बाद डिसाइड करती हूँ कि समझ में आ जाती है पूरी कहानी क्या है, उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि कहानी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा मैं ऐसी कहानी लिखूंगा जिसका आखिरी पेज पढ़ने के बाद आप ही नहीं बता पाओगे कहानी क्या है। तो चैलेंज वाज एक्सेप्टेड। और नॉर्मली कहानी, कोई भी नॉवल होता है, कहानी होती है, वो नदी की तरह होता है। वो बहता है पानी सीधे-सीधे एक डायरेक्शन में, पहाड़ से उतरा और अपनी डायरेक्शन में बहता हुआ समुद्र में जाके मिल गया। नॉर्मल कहानी का ये फ्लो होता है। लेकिन मेरी जो कौन था कहानी का फ्लो है वो इस सर्कल में है। वो कहानी घूमती है पूरा। जहाँ से घूम के शुरू हुई वहीं आके खत्म हो रही है। तो आप वो एकदम आप एक्सपेरिमेंट किए तो एकदम नए तरह का एक्सपेरिमेंट है। पूरी कहानी गोल होके आ रही है, वहीं आ रही है जहाँ से शुरू हुई है। और आप कहानी को प्रेडिक्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल है उसमें। तो थोड़ी टफ है, सबको समझ में भी नहीं आती, लेकिन उस कहानी का भी मेरा अ, ऑडियो बुक्स बनी है, उस कहानी पे मेरी कॉमिक्स बनी है। और इन कहानियों का भी कई सारी चीज़ें भी होनी बाकी हैं। होप सो कि जो चीज़ें हैं पाइपलाइन में हैं, वो जल्दी आएँ सामने। तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर बेस्ट। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस। आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे रीडर्स के साथ, टिप्स या अपनी बुक्स के बारे में कुछ भी? बस मैं यही कहूँगा कि हर कोई राइटर कहता है कि किताब अच्छी है, पढ़नी चाहिए, लेकिन इस किताब का जो फ्लो है, ये किताब पहले हिट हुई सेल्फ पब्लिकेशन पे, उसके बाद ये इसका प्रमोशन होके बुक बनी। वो इसीलिए बनी है क्योंकि इस किताब के साथ लोगों का अटैचमेंट, इस किताब के साथ लोगों की जो सीख लोगों की, वो इतनी ज़्यादा थी कि बुक को प्रमोट करना। गिनी-चुनी किताबें हैं जो प्रतिलिपि से उठ के बुक की शक्ल में आई हैं। उस जो शक्ल में आई हैं उसकी अपनी वजह है। वजह सिर्फ़ ये नहीं है जो प्रतिलिपि ने जो किताबों की शक्ल दी है वो ये नहीं है कि किताब सस्पेंस था, अच्छी थी। लेकिन वो किताब कुछ कहीं कोई मोटिव भी था। उस किताब ने ज़िंदगी में कुछ सिखाया भी। तो अच्छी, हमने तो बचपन से यही सुना था साहित्य वो होता है जिसमें सहित अर्थ हो। सिर्फ़ काले पेज रंग दिए, दैट्स नॉट बुक, दैट्स नॉट साहित्य, दैट्स नॉट लिटरेचर। उसका अगर अर्थ है तो वो अच्छा साहित्य है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इट्स अ गुड बुक, अच्छा साहित्य जिसको कहते हैं, विद मीनिंग। भूत भूत अगर आपको भूत की कहानी पढ़ने में मज़ा है तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको भूत की कहानी पढ़ने में, भूतों पे आपको शक है, लेकिन उसके अलावा इस बुक में इतना कुछ है रिलेशनशिप्स के बारे में, लाइफ की लर्निंग के बारे में। मतलब मैं जहाँ पेज खोलूँगा आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जैसे जो मेरा पेज अचानक से खुल गया। सच क्या होता है? क्या सच एक ही होता है? क्या सच का एक ही समाधान होता है? कहते हैं सच सभी सवालों का जवाब देता है, पर खुद सच न जाने कितनी बार सवालों के घेरे में मौजूद नज़र आता है। जैसे 2 लोगों में झगड़ा, एक जो झगड़ा हुआ, झगड़ा अपने आप में एक सच है। पहले शख्स के लिए वो अलग सच है, दूसरे शख्स के लिए उसका सच अलग है। और जो तीसरा शख्स उसको देख रहा है,
उसके लिए वो सच अलग। यदि झगड़ा अपने आप में सच, पहले शख्स का सच, दूसरे का, और जो तीसरा उसे देखा है। और कुछ घंटे बाद कुछ ऐसा होता है कि दोनों ने वापस हाथ मिला लिया झगड़ा करने बाद में। और तीसरे शख्स का सच, जो सच था, वो बेईमानी हो गया, कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची। तो दैट्स अ ऑब्जर्वेशन, दैट्स द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। बहुत कुछ इस किताब के अंदर है, जो लाइफ के एक्सपीरियंस थे, और शायद जो मुझे लगता था कि लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, वो सब कुछ इस किताब में मैंने डाला है। अपने थॉट्स हैं, चीज़ें जो ज़िंदगी को बदलने के लिए ज़रूरी हैं, वो सब हैं। अमेज़न पर मौजूद है। यही कहूँगा कि ज़रूर खरीदें अमेज़न पर, और थोड़ा बहुत आपको तो रिव्यूज़ आप जाके पढ़ सकते हैं। जो बुक खरीद रहा है, जो रिव्यू कर रहा है, वो आपको हेल्प करेगा इस बुक को समझने। Thank you so much, Manish ji. Please read my review on this book, what I thought of the characters, what I thought of the language, what I thought of the plot. The link is there in the description box. Also, if you want to buy the book, the link for the book is also there in the description box. So, and if you enjoyed watching this video, please do like, share, and subscribe. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks to all.